हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय शर्मा। वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। देखिए, आपने डिमांड की थी कि मार्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को 6 मार्क्स में आप किस तरह से लिख सकते हैं। मैं जितना इजी मैनर्स में इसको एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने इसको फटाफट टाइप कर दिया है। तो मैं आपको इसकी PDF फाइल शेयर कर रही हूँ और इसको समझा रही हूँ कि मैंने इसको मेरे वे क्या था कि आप इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर बना दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। Malthus theory of population is the theory of exponential population and arithmetic food supply growth. The theory was proposed by Thomas Robert Malthus. He believed that a balance between population growth and food supply can be established through preventive and positive checks. Malthus theory में क्या है कि जो मार्थस थे, थॉमस रॉबर्ट मार्थस थे, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया था कि आप फूड सप्लाई और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में किस तरह से एक प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मार्थस एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज इन वन ऑफ हिज वर्क्स। देखिए, जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल वे से बढ़ रही है, बट जो फूड सप्लाई है वो उस लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं जिस लेवल पर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिक वे से बढ़ती है और जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई करने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं वो अर्थमेटिक रेशियो पर बढ़ते हैं। ठीक है, सो मार्थस एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज इन वन ऑफ हिज वर्क्स। ही देन प्रपोज्ड द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन where he said that the population grows exponentially and the food supply grows arithmetically and that a balance between the two can be established through positive and preventive checks. These are the two checks through which we can examine when is the need to control which thing or to increase the productivity of food supply and how they can do it. Okay, so next is more elements of Malthusian theory, population and the food supply. Right, the Malthusian theory explained that the population grows in a geometric fashion. The population would double in 25 years at this rate. However, the food supply grow in an arithmetic progression. Food supply increases at a slower rate than the population. That is, the food supply will be limited in a few years. The shortage of food supply indicates an increasing population. देखिए, ये मैं जितना इजी से इजी बना सकती थी मैंने कोशिश की है और ये मैंने टू द पॉइंट ही लिखा है कि आपको एग्जाम में टीचर को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा लेंथी ले रखा है। ठीक है, जो कि टू द पॉइंट है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो। Checks on population. When the increasing population rate is greater than the food supply, disequilibrium exists. Means when the population will grow rapidly and there will be food supply of the same rate, then definitely there will be shortage of the food, right? And if the food supply is increased but the population will not grow in that manner which was expected, and still food supply is increased, then there will be more food supply than the population's growth, right? So there will be also an imbalance between the food supply and the population growth ratio. So adversities such as epidemic, war, starvation, famine and other natural calamities will crop up, which are named as positive checks by Malthus, and on the contrary there are man-made checks known as preventive checks. So now we will discuss positive checks. Like nature has its own way of keeping a check on the increasing population, right? It brings the population level to the level of the available food supply. ठीक है, जैसे कि फेमिनाइंस आ जाती हैं या अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, एपिडेमिक्स, वॉर्स हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो नेचर अपने आप ही उस चीज़ को इक्विलिब्रियम कर देती है। प्रिवेंटिव चेक्स, द प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज लेट मैरिजेस, सेल्फ कंट्रोल, सिंपल लिविंग हेल्प टू बैलेंस द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई. These are the two checks through which the balance can be maintained between the population growth and the food supply. Okay, so geometric and arithmetic ratio. What do you mean by geometric and arithmetic ratio? That population were unchecked grows in a geometric ratio, that is in the ratio of 1, 2, 4, 8, 16, and in this way the population, if unchecked, will double in every 25 years. Okay, then subsistence grows at an arithmetic ratio, means food supply grows at arithmetic ratio and population grows at geometric ratio.
सो इसको क्रिटिसाइज किया गया. क्रिटिसिज्म किस रिगार्डिंग था कि माल्थुसियन थ्योरी वाज क्रिटिसाइज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस लाइक इन वेस्टर्न यूरोप the population was rising at a rapid rate. At the same time the food supply had also increased due to technological development. कि अगर population growth बढ़ी थी तो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे फूड सप्लाई को भी बढ़ाया गया, तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया, राइट. Next, many times food production had increased more than the population. For example, 2% of the total population is working in the agriculture sector. In the US, still the total GDP is more than the $14 trillion. So it also criticized the Malthusian theory. Next is Malthus theory stated that one of the reasons for limited food supply is non-availability of land. That farmers are ready to grow, but the non-availability of land is the main reason, right? However, the amount of food supply in various countries has increased due to increased globalization, because population वहाँ पे ज़्यादा हो गई, land वहाँ पर बची नहीं जहाँ पर कि एग्रीकल्चर किया जा सके, ठीक है. नेक्स्ट इज द एस्टिमेशन फॉर द ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अर्थमेटिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर नॉट प्रोवाइडेड बाय माल्थस. इट वाज स्टेटेड दैट द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट कंसिस्टेंट विद माल्थस थ्योरी. सो इट आल्सो क्रिटिसाइज द माल्थस थ्योरी. यू कैन ऐड टू पिक्चर्स. फर्स्ट इज हेयर, यहाँ पे जो नीचे टाइम आ गया हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल लाइन के साइड में पॉपुलेशन ग्रोथ आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ है जो वो ज्योमेट्रिक वे से हो रही है और पॉपुलेशन ऑफ फूड अर्थमेटिक से हो रहा है. और बीच में जहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है जहाँ पर कि प्रॉपर बैलेंस है, दैट इज द पॉइंट ऑफ माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफ. ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ आएगा. ओके, तो आप ये पिक्चर जरूर ऐड करके जाइएगा. दिस इज अ बेसिक पिक्चर ऑफ द माल्थस थ्योरी शोइंग. ओके, एंड द वन मोर पिक्चर इज द फ्लो चार्ट दैट माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किस पे है. फर्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इंक्रीजेस इन द बिहाफ ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एंड द सेकंड इज फूड प्रोडक्शन दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. And what will be the result of that? It will be disequilibrium between population and the food supply, and how to correct it, positive check and the preventive checks. Okay, so this was a shortest explanation of my Malthusian theory, as you can write in the exam for 6 marks or for 8 marks also. In 8 marks you can add more explanation as you understand this theory, so it will be sufficient for you. Okay, सो आई होप आपको पसंद पसंद अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या माल्थुसियन थ्योरी है. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया कीजिए. आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है. अगर आप लाइक नहीं करोगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे और शायद आगे वीडियो ना बना पाएंगे. सो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा. सो थैंक यू सो मच.